So what do you see 2026 as a year, and how do you see it unfolding as a fund manager, and how do you see it in unfolding for the investors? One of the strategies like Aegis, it delivered close to 45% return. तो जब मार्केट बॉटम कर रहा था हम टॉप बना रहे थे एंड देन मार्केट करेक्टेड लाइक जनवरी फरवरी 20% आई सेड स्मॉल कैप करेक्टेड और हमारा जो एलोकेशन था इट वाज नियरली 60 to 70% टू स्मॉल कैप स्टॉक्स. So we also corrected by 20% आपने दो अप्रोचेस की बात करी, बॉटम अप एंड टॉप डाउन. जी. So Bonanza में what is the approach? You select the sectors and then the stocks, or you go upwards. How do you go about it? Talking about the thesis, अगर हम Aegis PMS को देखें, तो IT as a sector, which is not performing for the last 1 year, HCL एक स्टॉक है आपके उसमें सेक्टर में दिख रहा है जो कि बिल्कुल फ्लैट रिटर्न दे रहा है. So what is the rationale behind having IT as a sector now in this year of 25? One of the beauty of bullion is it is protecting your portfolio. So it's a auto hedge. तो आपने एज अ hedge लिया है कि एज अ इन्वेस्टमेंट लिया है? So हम लोगों ने when we took in the volatile environment, it is was to उस समय नहीं पता है आपको कहाँ जाएगा गोल्ड और सिल्वर, बट आपको ये पता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है एंड डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर विल hedge. So there is a upside. Hello and welcome to Returns and Beyond, a podcast with Wealth One. And my name is Narendra Agarwal and I'm your anchor. And today is a very special day because we are going to discuss wealth, we are going to discuss wealth creation and how the compounding works. For the viewers and for the young investors, this is going to be very exciting because we have a star player in this industry, and that is Mr. Achin Goyal, the fund manager of Bonanza PMS, who's got 14 years of illustrious experience behind him. He has been creating wealth for the investors for a long time and also looking after various other aspects of the Bonanza Financial Services. Bonanza, established 1994 and has been into the wealth management and financial services, has presence in more than 500 cities. And it is a pleasure to have Mr. Achin Goyal here with us. Hello, Achin sir, and welcome to this podcast. And I'm sure that with your experience, our viewers are going to benefit a lot. Thank you, Naren, and it's a pleasure to be here, and I hope the same. Okay, so we can get started with the questions right away, or Yeah, I mean, it's good to go. Yeah, we can okay. start. So, Achin, we would like to understand that 2026 is just unfolded. We're sitting in Jan 20th, more or less. And we have seen enough of the geopolitical turmoil. We have seen the recent corrections that has come up in Nifty and the small cap index. And we see a lot of things unfolding as we see the EU trade deal happening and so many, I'll say, economic world war starting here. So what do you see 2026 as a year, and how do you see it unfolding as a fund manager, and how do you see it in unfolding for the investors? Yeah, I think it's that very interesting, Naren. Okay, whenever I speak to a lot of people in the industry or youngsters, the only word I hear is correction has happened. And then I recollect my experience of 14 years, and I say, correction to bhi hua nahi hai. When you look from January 25 until date, I think small cap index may be down by 6-7% per se. Our portfolios might have been down by 20-25%. And that is primarily happened because, a lot of people had a skewed portfolio into small cap side. देखिए, अगर हम देखते हैं what has happened, the genesis of this overall ecosystem, it has grown fivefold in last 5-7 years. So post-COVID is when the actual growth of investments have come in. And अगर हम डीमैट होल्डर्स देखते हैं, I think they were around 4 crores or 5 crores, before 2020, and today it's close to 18-19 crores. So 5x jump has happened. Now all the investors who have invested post-COVID, तो उनके लिए थोड़ा setback था January, I mean rather 25-26, or if I have to put it 25 calendar year. And like you rightly said, a lot of geopolitical events happened. So Jan-Feb alone, small cap index, if I remember, it corrected by nearly 20%. 2 months, 20% correction happened. And 1.5 months, it recovered. So by March end, we were back to recovery.
And then it was India-Pakistan conflict, Pahalgam, and then you have Iran-Israel conflict. You have tariffs, right? You have China threaten. You have multiple events have happened, like you rightly said. And now back in January, huge exodus of FIIs. If I have to tell you, within Jan, I think around $3.5 billion USD has already gone out. Last year, calendar year 25, total FI outflow was highest. It was close to, I think, 18 or 19 billion dollar. And within Jan, we are seeing exodus of $3.5 billion. So, problem is the confidence on the Indian economy by the FIs, the depreciating rupee, right? So, a lot of factors are playing in. So, it is how it will unfold. It's tough to say, but yes, one thing is for sure, it's gonna be volatile. It's not gonna be easy ride. It's gonna be bumpy. It's gonna be choppy, and one has to be, wear the harness. That's for sure. So इन्वेस्टर 2026 में इन्वेस्ट करे कि अभी साइड पे बैठे? नहीं, इन्वेस्टर जो वर्ड है ना अपने आप में नरेन, उसका मतलब ही है यू हैव टू इन्वेस्ट. आपको इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए. एंड जब हम बोलते हैं इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, एंड दैट इज़ वेयर द आर्ट ऑफ फंड मैनेजमेंट कम्स. देखिए, इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं. जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है स्टॉक. जब हम स्टॉक मार्केट से बात करते हैं तो कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो वहाँ पे थीसिस होती हैं, बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, मल्टी बैगर स्टोरीज, XYZ, मल्टीपल थीसिस आर देयर. स्टॉक हमने आइडेंटिफाई कर लिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड विच इज़ वेरी पर्टिनेंट इज़ कि वो स्टॉक अभी अगर स्मॉल कैप का है, मिड कैप का है, लार्ज कैप का है, क्या मेरे पोर्टफोलियो में एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर स्मॉल कैप होना चाहिए इस समय, राइट? या मुझे अभी वेट करना चाहिए? शुड आई वेट फॉर द बजट? एंड इफ़ येस, मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक में? शुड आई स्टैगर बाइंग या आई शुड वेट? आई शुड डू मे बी 2%, 3% एलोकेशन. तो जो फंड मैनेजमेंट है, दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल कॉम्पोनेंट टुडे. सो अभी तक लोगों ने स्टॉक को फोकस किया था. I mean, at Bonanza, definitely we have been following very aggressively on this fund management process, क्योंकि we feel कि stock identification is one part, but returns जब आती हैं, it is majorly because of the identification of the sector, identification of the trend, selection, allocation, the stock allocation, and right entry and exit, which is not part of the research. Right, so fund management is going to be very critical from here. Your asset allocation will play a very critical role going forward. तो इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर आप आज भी देखेंगे कोई भी ऐसी एसेट क्लास जो आपको 15% प्लस कैगर दे सकती है विद द ईजी लिक्विडिटी, वो एक स्टॉक मार्केट है. तो निवेश तो हमें करना चाहिए. कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसके लिए हम आपका कहना है कि 2026 में 15% प्लस रिटर्न्स बनने की आशा है? नरेन, मैंने थोड़ा सा ऐसा रिसर्च में है, फंड मैनेजमेंट में भी कीप ऑन स्टडिंग डेटा. तो अनुमान है कि जो EPS है निफ्टी का, एंड निफ्टी इज़ लाइक टॉप 50 कंपनीज, अराउंड 12% से ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन है, राइट, अगले 2 साल. और अगर हम अर्निंग पर शेयर को 12% का ग्रोथ मानते हैं एंड एक रीजनेबल PE देते हैं हम निफ्टी को अराउंड 19 का, तो 9 से 10% निफ्टी आपका एक्सपेक्टेड है ग्रो करने का. नाउ दीज आर अबाउट टॉप 50 कंपनीज. अगर हम थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, राइट, कॉर्पोरेट रिस्क प्रीमियम लेते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ जाते हैं, तो क्वालिटी मिड कैप टू स्मॉल कैप एंड क्वालिटी स्मॉल कैप, आई थिंक 14 to 15% जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है विद अ मैनेज वॉलेटिलिटी, राइट. अगर हम दूसरी तरीके से देखते हैं तो ये हो गया आपका स्टॉक स्पेसिफिक, निफ्टी स्पेसिफिक, अर्निंग स्पेसिफिक. अब हम मैक्रो व्यू लेते हैं कि आज आपका जो GDP है, फॉर एग्जांपल फॉरकास्ट आया है 7.4%, राइट, GDP ग्रोथ का है. मैं इन्फ्लेशन ऐड करता हूँ लेट्स से 4%, राइट. तो हम बोल रहे हैं इंडिया की नॉमिनल GDP ग्रोथ जो है वो भी अराउंड 10.5 to 11% का ग्रोथ है. यू हैड अ कॉर्पोरेट रिस्क प्रीमियम ऑफ 2%, 13%. एंड अगेन दिस कॉर्पोरेट रिस्क प्रीमियम जो 2% का है, ये मैं बहुत बड़ी कंपनीज के लिए लगा रहा हूँ. तो अगेन लिटिल मिड कैप, लिटिल स्मॉल कैप, 14-15% इज़ नॉट अ टफ जॉब. स्किल will come into picture अगर हमें 18 से 20% लाना है. इज़ दैट पॉसिबल? दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल. इंडिया में जो ग्रोथ स्टोरीज़ हैं या जो स्मॉल कैप में अभी हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, दे आर फिनोमिनल. सो अगर हम सेक्टर की बात करते हैं, जैसे डिफेंस है, रिन्यूएबल एनर्जी है, जो एम्बिशियस प्लान है इंडिया के, आई थिंक ह्यूज पोटेंशियल. सो अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे, 18 to 20% स्मॉल कैप, मिड कैप में विद लिटिल बिट रिस्क ऑफ कोर्स इज़ डूएबल. Is doable, yes. Yeah.
ओके, दैट इज ग्रेट टू सी, बिकॉज हमने 2025 देखा है जो बिल्कुल फ्लैट गया है, और अभी हम 2025 पे आते हैं। पर इससे पहले वी वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने दो अप्रोचेस की बात करी, बॉटम अप एंड टॉप डाउन। जी। So Bonanza में what is the approach? You select the sectors and then the stocks, or you go upwards. How do you go about it? सो नरेन, इफ़ वी गो बाय बुक, अगर हम बाय बुक डेफिनेशन जाते हैं ना, तो यू आर राइट कि या तो टॉप डाउन है या बॉटम अप है, बट इन रियल सेंस ना, इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ। कभी कभी आप बॉटम अप से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं एंड आप उसको एसेस करते हैं कि वो जिस सेक्टर में है, क्या उस सेक्टर में कुछ स्पार्क्स हैं, क्या वो सेक्टर में स्टील विंड है, क्या वो मोमेंटम में है। अगर नहीं है तो हो सकता है मैं उस बॉटम स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को उस समय नहीं लूँगा, राइट। एट द सेम टाइम लेट्स से कि सेक्टर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वी सी कि स्टॉक में जो करंट्स हैं, अंडर करंट्स हैं, वीक हैं, then I may still not go, right? So it is a combination of both, wherein you work with the top-down approach also and you work with the bottom-up approach also. So it's a confluence जहाँ पे आपके दोनों का एक अच्छा संवेदन होता है, मिलन होता है। तो आई वुड से 60-70% पोर्टफोलियो वहाँ पे बनता है। बड़ा कम पोर्टफोलियो जो ओनली टॉप डाउन होगा, और बहुत कम पोर्टफोलियो होगा जो ओनली बॉटम अप होगा। Okay, fair enough. So 2026 तो समझ में आ रहा है कि will be a 15% plus year for the investors, and that's a very big relief for all of us. 2025 की बात करते हैं। So 2025 में हमने देखा कि एक बहुत फ्लैट ईयर गया था, बट व्हेन वी सी Bonanza's PMS we see that there is a negative growth. Okay, बट अगर हम सिर्फ 1 ईयर की ग्रोथ देखेंगे, बट व्हेन वी सी योर 3 years growth, it is coming to 20% CAGR and 21% CAGR. When we see your 5 years growth, is coming to 28% CAGR, which is enormous and huge. Okay, so मेरा आपसे सवाल है कि इस साल नेगेटिव ग्रोथ का रीज़न क्या रहा है, मार्केट फ्लैट होने का रीज़न क्या रहा है? सो 25 की रिटर्न से पहले हम थोड़ा सा, जैसे आपने बोला, 24 की रिटर्न्स पे जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, जो जर्नी है वो कंटिन्यूड जर्नी थी, तो आइसोलेशन में नहीं देख पाएंगे उसको। सो जनवरी, सो अंटिल 24 दिसंबर अगर आप देखेंगे, मार्केट स्टार्टेड करेक्टिंग ऑलमोस्ट अगस्त 24 ऑनवर्ड्स, मार्केट स्टार्टेड करेक्टिंग। बट हमारी जो स्ट्रैटेजीज थी स्मॉल कैप मिड कैप की, सो हमारा जो मल्टी कैप का पोर्टफोलियो है, इट इज़ ओरिएंटेड एंड बायस्ड टुवर्ड्स स्मॉल एंड मिड कैप। So 24-25 until December 24 तक, one of the strategies like Aegis, it delivered close to 45% return. तो जब मार्केट बॉटम कर रहा था, हम टॉप बना रहे थे, एंड देन मार्केट करेक्टेड लाइक जनवरी फरवरी 20% आई सेड स्मॉल कैप करेक्टेड, और हमारा जो एलोकेशन था इट वाज नियरली 60-70% टू स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो वी ऑल्सो करेक्टेड बाय 20%। बट ब्यूटी इज़ नरेन कि वी आर सो एक्टिवली मैनेजिंग। हम लोग 100% इन्वेस्टेड थे दिसंबर 24 में, एंड बाय फेब 25 वी वर ओनली 50% इन्वेस्टेड। तो हम एक्टिवली लॉस बुक कर रहे थे, हम एक्टिवली अपने प्रॉफिट्स बचा रहे थे। नाउ व्हाट हैपेंड अगेन, जनवरी फरवरी 25 में आपका मार्केट रिवर्स कर गया। अच्छा, दैट इज़ हाइंडसाइट रिवर्स कर गया। व्हेन यू आर फॉलिंग मार्केट, यू डोंट नो कि कितना नीचे जाएगा। एंड व्हेन द मार्केट रिकवर्ड, वी शिफ्टेड फ्रॉम एग्रेसिव स्मॉल कैप मिड कैप टू लिटिल कॉन्जर्वेटिव स्टॉक्स। हमने कहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जहाँ पे ज़्यादा है, हमें वहाँ पे मूव करना चाहिए। एंड वी वर वेरी अर्ली एंट्रेंट इनटू PSU बैंक्स, कंज्यूमर सेक्टर। तो हम मार्च 25 में उन सेक्टर्स में माइग्रेट कर गए इनटू मल्टी कैप। तो मेरा स्मॉल कैप का एलोकेशन रिड्यूस हो गया, एंड लार्ज कैप एंड डिफेंसिव प्ले में मैं चला गया। अब इट वॉज टू प्रोटेक्ट द पोर्टफोलियो। सो इंटेंट इज इंपॉर्टेंट। सी, आई एम नॉट वरीड अबाउट एक साल में क्या हुआ, बट साइकोलॉजी ऑफ द फंड मैनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक हाउ यू आर मैनेजिंग द पोर्टफोलियो एंड हाउ यू आर मैनेजिंग द रिस्क। सो देन वी वेंट टू कॉन्जर्वेटिव सेक्टर। जो मार्केट रिकवर हुआ, डेफिनेटली दीज सेक्टर रिकवर्ड लोअर, दीज स्टॉक्स रिकवर्ड लेसर। तो वहाँ से हमारी अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यूड है। बट वी वर एंटिसिपेटिंग ग्रेजुअली कि सम पॉइंट ऑफ टाइम योर रिजल्ट्स विल किक इन, Q2 के रिजल्ट्स जो है किक इन होंगे, और जो भी हमारा स्मॉल कैप का होल्डिंग है, इट विल टर्न बैक। Apparently there also we somehow went wrong. Results were good, but market did not support small cap. And after September results, in October number we realized कि small cap से हमें further reduce करना चाहिए allocation. And that's where another thing came is the uncertainty. The global uncertainty is spreading very fast. तो सिल्वर जो है वो स्काई रॉकेट होना शुरू हो गया, गोल्ड सडनली शूट अप करना शुरू कर दिया, एंड वी वर नॉट एबल टू कैप्चर सिल्वर वेरी अर्ली, बट आई थिंक समवेयर October side, September, October, we entered into bullion.
and we diversified our portfolio to bullion also, close to 18-20% we entered into bullion, which kind of now has been helping us for last 2-3 months and saving this term. So the why it went flat, there were a lot of geopolitical events, काफ़ी सारे events थे, tariffs था, and like I said, FI's flow was enormous. Second, we were skewed towards small cap, so that part we have reduced. And just think, I mean, one more thing I would like to put it here, which you also mentioned, कि let's say we are down by 15% in 1 year, calendar year, right? और उसके बाद मेरा CAGR is 20% CAGR still. So the imagine kind of returns we have delivered in the yester 2 years before that. इसका मतलब है आपने पहले बहुत अच्छा काम किया है. हाँ, नहीं पहले किया है और आगे भी करेंगे. So same things you will see going forward. But एक इन्वेस्टर माइंडसेट है अचिन, दैट जब तो अल्फा बन रहा होता है तो इन्वेस्टर बहुत जल्दी उस अल्फा को भूल जाता है, और जब ड्रॉ डाउन आता है तो बहुत पेनफुल होता है. So that I believe that's why we remember the crashes more than the upsides. Yes. Yeah, we remember 2000, we remember 2008, we remember 2018, 20, 22. But जब मार्केट ऊपर गया था वो वाले साल याद नहीं रहते. तो you know there's two side to the coin, Naren, and I agree with you. और वो इसलिए भी याद रहते हैं क्योंकि जब मार्केट अच्छा होता है तो इन्वेस्टर्स आपको पूछते नहीं हैं. आप आराम से अपना जो है लाइव जीरो फंड मैनेज करो, सब कुछ करो. जब ख़राब होते हैं तो इन्वेस्टर्स आपको पूछते हैं, राइट? एंड एवरी डे यू आर आंसरिंग, यू आर अकाउंटेबल टू देम. सो दैट्स वाई यू नो दे ऑल्सो हैव अ डीपर मेमोरी कि हाँ ये टाइम जो है ख़राब चल रहा है, ड्रॉडाउन चल रहे हैं. बट यू नो इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग, आई विल टेल यू. हम लोग PMS नरेन 2004 से कर रहे हैं. इफ़ यू विल फाइंड हाउ मेनी पीपल आर डूइंग PMS विद मोर देन 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत कम आपको नाम नजर आएंगे. Bonanza इज़ वन ऑफ देम. एंड हम लोग प्राइमरली PMS एज अ वैल्यू एडेड सर्विस टू आवर ब्रोकिंग क्लाइंट्स को ही दे रहे थे until 2022. So almost nearly 18 years it was a product owned by Bonanza and known to Bonanza trading clients only. But हमारी जो लर्निंग है उस पीरियड की, that really what helps us in shaping our product services, in shaping our customer journey, in shaping our investor journey. So वो जो हमने लर्निंग किया है वो आज हम बहुत you know proudly बोलते हैं that we are standing with investors when the markets are going down. Today हमारी जो फंड मैनेजमेंट टीम है, कस्टमर सर्विस टीम है, we connect with them proactively, right? Because उस टाइम पे इन्वेस्टर पैनिक होता है and needs someone to talk to. देखिए जब इन्वेस्टर आया उसका हॉराइजन 5 साल का है, बट येस 1 साल में जब चीज़ें नहीं मेटलाइज होती हैं, एक ऑब्वियस सा क्वेश्चंस आते हैं एंड समटाइम्स अनरीजनेबल भी आते हैं. फॉर एग्जांपल कि FD ने तो रिटर्न दिया, मार्केट ने आपका पोर्टफोलियो ने क्या रिटर्न दिया, राइट? तो आप जस्टिफाई कर सकते हो मार्केट टू मार्केट, FDs टू मार्केट जस्टिफाई करना और डिफिकल्ट होता है, राइट? तो जो हमारा साइकोलॉजी होता है इन्वेस्टर का वो कभी कभी चेंज हो जाता है. बट दे आर राइट, इट इज़ देयर मनी, राइट? एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. तो क्रैशेस, अगेन लाइक आई सेड, क्रैश इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड आई वुड से. मार्केट में एक कंसोलिडेशन हुआ है लास्ट ईयर में एंड मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को इसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहिए. माई सेंसेस की मार्केट कभी भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन टेक अ टर्न एंड इट्स गुड टाइम जिसको जो भी कैश में है धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू करें. अगर किसी को डर लगता है पर्टिकुलर स्टॉक जाने में, यू हैव लॉट ऑफ ETFs, थीमेटिक ETFs, आप उसमें एंटर करें, आप इंडेक्स ETF में एंटर करें फॉर द न्यू इन्वेस्टर्स, बट स्टार्ट क्रिएटिंग पोर्टफोलियो. Okay, that is a great advice for the young investor especially कि don't see a correction as a negative word. It's always good to enter better into the market. जी. Yeah. तो क्या सेक्टर्स में आप देखते हैं कि यहाँ से तेजी आएगी या इन सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा where you can focus your research Focus on? your stocks on. Yeah. तो नरेन ने बोला अब सीधा हम बुलजाई मारते हैं कि कहाँ पे है, ये तो हो गया. So नरेन, when we look at mining and metals, definitely कुछ companies हैं जैसे GMDC है या ओडिशा मिनरल ओर है, राइट? So there are some companies जहाँ पे आप positions ले सकते हैं. वेदांता है which is into you know zinc and copper mining. या हिंदुस्तान जिंक है जो डायरेक्टली जिंक माइनिंग करता है. तो यू कैन फोकस ऑन दीज कंपनी. हिंडाल्को एल्यूमिनियम की साइड में आ गया. सो मेटल एंड माइनिंग कंपनीज़ में थोड़ा सा हम डेफिनेटली देख सकते हैं. जब हम AI का बात करते हैं, राइट, देन इट्स द टेक्नोलॉजी एंड द इकोसिस्टम सपोर्टिंग दैट टेक्नोलॉजी. तो डेटा सेंटर्स हो गए, राइट? जैसे हमने एक नाम लेटली सुना होगा अनंत राज. तो अनंत राज इज़ क्रिएटिंग दैट डेटा सेंटर एंड दैट स्टोरी इज़ बिल्डिंग.
तो वी ऑल्सो हैड वी बर्नट आवर हैंड्स इन अर्ली 2025 जब डीप सीक आया था तो वो 40% गिरा भी था, बट इट वॉज अ हाई वैल्यूएड स्टॉक राइट नाउ. बट इफ़ यू आस्क मी टुडे कैन दैट बी अ गुड stock? It's not having a sizable revenue from that, but definitely it is one of the stock to look into, right? Clean energy की बात करते हैं तो अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर, आई थिंक दिस हैज़ बीन कमिंग इन बजट फॉर ऑलमोस्ट 2 बजट्स नाउ. दिस विल बी अ थर्ड ईयर. और वन ऑफ द कंपनीज दैट कम टू माई माइंड इज हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, अच्छा. जो SMR में बनाती है. एंड आई थिंक 2 years ago it was 35 something, and when the announcement came it went to 50 something, बट आज भी वो 18-20 रुपये पे ही है. बट यू नो वन कंपनी प्राइवेट विच कैन क्रिएट दैट इको सिस्टम फॉर द मॉड्यूलर रिएक्टर्स, तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का एक अच्छा एक्सपीरियंस है. नाउ डज इट मीन आई हैव टू टेक नाउ? प्रोबली नो, बट दैट इज़ वन थिंग दैट एक लोग रडार में रख सकते हैं फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी. L&T is also into the construction of this thing. So I believe जो construction companies हैं, and when the SMR and nuclear energy comes, this will be one area that people can look into. उसके बाद यू नो यू लुक इनटू वेस्ट रिसाइकलिंग. Yes. तो वहाँ पे अगर हम वाटर रिसाइकलिंग की बात करते हैं तो आई थिंक एक आयन एक्सचेंज है दैट कम्स टू माई माइंड विच इज़ इनटू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. And I think Watek Wabag is another company which comes into my mind. So I will be probably keeping eyes on that as well. So अगर हम बजट स्पेसिफिक बात करते हैं तो these are certain areas. And नरेन बजट में हो सकता है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड हेल्थ केयर एक्सपेंड हो जाए, राइट? तो मैं वहाँ पे ट्रेडिशनल बात कर रहा हूँ, वो जो आएगा आएगा, राइट? बिसाइड्स दैट अगर हमें 2047 का एक डेवलप्ड विजन लेके चलना है इंडियन इकोनॉमी का, तो ये चीज़ें मुझे लगता है डेफिनेटली बजट में आनी चाहिए. एंड अ थॉट प्रोसेस हैज़ टू बी देयर विद सम थ्रस्ट एंड इम्पेटस. So जब हमने आपका पोर्टफोलियो देखा तो मज़गांव डॉग was there in the portfolio, but has a very little weight on that. Yes. तो डिफेंस में आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनीज विल डायरेक्टली बेनिफिट फ्रॉम दैट डिफेंस बजट? बिकॉज दिस इज अ राइटिंग ऑन द वॉल कि डिफेंस पे अच्छा एलोकेशन आने वाला है. जी. सो अगेन ये जो डिफेंस का थीम है, अगर आप अगेन देखेंगे, सो व्हाट पीपल लुक एट रिसर्च, ऑर्डर बुक, ग्रोइंग स्टोरी, राइट? तो डिफेंस में तो या से 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल भी था, बट मार्केट में डिफेंस को रिवॉर्ड अभी तक नहीं हुआ है. इनफैक्ट यू नो डिफेंस इज करेक्टेड. सो पीपल आर अगेन एक्सपेक्टिंग कि डिफेंस विल किक इन एंड यू नो देयर विल बी इंक्रीज एलोकेशन. अगर सेंटिमेंट्स हैं, अगर पॉजिटिविटी है, तो स्टॉक्स क्यों नहीं चल रहे हैं, राइट? इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड देन वाई स्टॉक्स आर नॉट मूविंग? दैट्स अ कॉन्ट्रा व्यू टू लुक. कि भाई ऐसा नहीं है कि आपको, लाइक यू राइटली सेड, इट्स रिटन ऑन द वॉल. तो हम बोलते हैं ना, एक हर्ड मेंटेलिटी होती है, एक बिहेवियर होता है. अगर पता है तो हम क्यों नहीं जा रहे हैं? सो माई सेंस इज कि डिफेंस विल प्ले, इट्स नॉट दैट, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म प्ले. सो पीपल हैव टू बी पेशेंट विद डिफेंस. वन ऑफ द थिंग इज कि इट मे नॉट इमीडिएटली हैव अ रन, इट विल बी अ ग्रेजुअल रन. बट अगर हमारा विजन अगले 5 to 10 years का है, देन यू गेट इन टू डिफेंस. जैसे एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, लाइक वो एक स्लो, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज अ 50-60% ग्रोथ इन अ ईयर, एंड देन लास्ट 1-2 years देयर हैज बीन नेग्लिजिबल ग्रोथ, रादर नेगेटिव ग्रोथ, राइट? डज इट मीन कि इंडिया अपना रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट नहीं करेगा? करेगा. बट व्हाई द स्टॉक्स आर नॉट मूविंग? सो समटाइम्स यू नो यू गो थ्रू अ पीरियड ऑफ अपस्विंग एंड डाउनस्विंग. नाउ कमिंग बैक, डिफेंस में जो फोकस एरिया लग रहे हैं हमें, सो वी आर क्लोजली वॉचिंग द यू नो नेवी साइड, जो आपका नेवी शिपिंग डिफेंस है. तो मज़गांव डॉक, GRSE, कोचिन शिपयार्ड, दीज आर यू नो सम स्टॉक्स जो हमें लग रहा है फोकस माइट बी टूवर्ड्स दिस. सम एरियाज विदाउट गेटिंग टू द नेम्स विल बी जहाँ पे ड्रोन्स, क्योंकि अभी जो बोलते हैं जो वॉर्स लड़े जाएंगे, शायद वो फील्ड पे नहीं लड़े जाएंगे, वो हवा में लड़े जाएंगे, राइट? एंड इफ़ यू हैव सीन इज़राइल, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, so drones have played a very critical part. Yes. Right? So I feel ki any defense companies which are into drone or advanced drone technologies or into the incubation, even the startup ecosystem, so that will be you know that will be something जहाँ पे लोगों को अपना focus attention रखना चाहिए. So any stock that you're following in the drone, or you are that's in your research bucket, which is into the drone technology? So specifically if we say that any company that's specific to drone we are looking into right now, not yet, but it is in the radar as a sector, and we are working where we can get, because जो companies हैं कुछ बहुत छोटी हैं, they are not like very big who are only doing drone is like a subset of the overall ecosystem. It's not a main business of any big listed company.
तो बट येस वी आर कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन दैट. उसके बाद देन यू हैव यू नो radar system, torpedo system, ancillary components that are related to the defense. तो वहाँ पे also we are keeping track. But one of the big name that comes into picture is HAL and BL, which were also ranked among top 14 and 15 companies in the world. तो एक कुछ हो गए कॉमन नाम हो गए, HAL and BL is everyone knows, but besides that I feel कि shipping defense is something that one should keep an eye on. एंड अगेन अगर मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ, जैसे मतलब यंग इन्वेस्टर्स उनको क्या करना चाहिए, सो देर आर टू अप्रोचेज. आप स्टॉक स्पेसिफिक जाएँ या आप एक ETF डिफेंस का ले लीजिए विच हैज़ अ मिक्सचर ऑफ द स्टॉक्स. मिक्सचर ऑफ ऑल एवरीथिंग. यस, जैसे कि आपने बुलियन ETF लिया हुआ है. यस, बुलियन ETF लिया हुआ है. डिफेंस में भी आई थिंक यू हैव 2-3 आई थिंक मोतीलाल और ग्रो, आई एम नॉट श्योर. मोतीलाल ETF डेफिनेटली इज देयर इन डिफेंस, सो वन कैन प्रोबब्ली लुक एट इट. Okay. So, talking about your now going to your PMS and talking about your portfolio, what actually is happening? We want to understand what sectors. Okay, so when we see that finance has a good weight on your portfolio. Okay, so RBL Bank probably अच्छा return दिया है उसने. But what is your underlying rationale behind having finance as a sector in your portfolio? सो मैं थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेता हूँ नरेन, और जिस पोर्टफोलियो की हम बात कर रहे हैं इट इज़ अ एज पोर्टफोलियो. नाउ एज इज़ अ स्पेशल अपॉर्चुनिटी. हमने शुरू में बात की थी टॉप डाउन और बॉटम अप. सो दिस इज समथिंग जहाँ पे मेजॉरिटी विल कम एज अ बॉटम अप. Okay. बिकॉज इट्स अ स्पेशल अपॉर्चुनिटी. तो यहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि कहाँ किस स्टॉक में हमें लग रहा है देयर इज़ अ डेवलपमेंट एंड वी ट्रैक दोज डेवलपमेंट्स. सो RBL Bank, when we entered, I think a day after or two, that announcement of Dubai Bank got into news. So we were monitoring and tracking the development. At the same time, RBL का हमें जो portfolio लग रहा था retail loan में, they were doing very good. So हम लोगों का यहाँ पे top down बहुत ज़्यादा approach नहीं था, but it was more from the bottom up approach in terms of opportunity where developments are there. और मे बी कहीं पे सीवियर करेक्शन हो गया है एंड वी एक्सपेक्ट दैट इज़ नॉट वारंटेड गिवन द दिस थिंग. सो इंडसइंड बैंक इज़ वन ऑफ दैट प्ले दैट वी एंटर्ड, राइट. सो मेरा अगर आप एलोकेशन देखेंगे बैंकिंग में इन एज पोर्टफोलियो, इट इज़ प्राइमरली दीज 2 स्टॉक्स, राइट. एंड इट्स अ वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, क्योंकि वहाँ पे हमने स्टॉक्स लिया एंड देन वी डिड चेक कि ऐसा तो नहीं है कि बैंकिंग नेगेटिव सेक्टर में है. सो इट्स नॉट दैट वी डिड नॉट चेक, बट प्राइमरली द एम्पटस वाज ऑन द स्टॉक रादर देन द सेक्टर. बट हमने सेक्टर को वैलिडेट किया, राइट. मैं आपसे सहमत हूँ इस बात पे, बिकॉज आई कीप चेकिंग द एंड रिसर्चिंग ऑन द PMS पोर्टफोलियोज अ लॉट. और मुझे ये एक वन ऑफ द यूनिक पोर्टफोलियोज दिखा जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स थे. राइट. तो जैसे इसमें आपको और कुछ वो बड़ा क्लैरिटी है कि ये बॉटम अप अप्रोच ही है, हाँ. कि सेक्टर को अहमियत नहीं दी गई है, बट स्टॉक को और उसकी एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी को अहमियत दी गई है. यस. तो इसमें तो फोकस है वो यही है कि ग्राउंड लेवल पे क्या कोई डेवलपमेंट्स हो रही हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल रिलायंस पावर. आई थिंक इन अर्ली 2022 और 23 अगस्त सितंबर वी आइडेंटिफाइड दैट स्टॉक. तो उस समय द डेट रिस्ट्रक्चरिंग वाज गोइंग ऑन. ऑथम इन्वेस्टमेंट में उसमें 65,000. तो इट वाज रिटन ऑन द पेपर, आई नॉट से फॉल, बट हर जगह था कि उनका डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, केसेस भी चल रहे हैं. एंड दैट्स द टाइम वी एंटर इनटू दैट एट आई थिंक 20 ऑड लेवल्स एंड गिव अ बम्पर रिटर्न अंटिल 70-73. अब उसके बाद कभी कभी जो बैकफायर भी होती हैं कि सडनली द केसेस केम एंड इट डिड नॉट परफॉर्म एज पर एक्सपेक्टेशन, बट वी आर स्टिल होल्डिंग दैट बिकॉज वी फील कि अगर आपको लंबा वेल्थ क्रिएट करना है, सो डिस्टर्बेंसेज विल बी पार्ट ऑफ इट. इज personal liability of Anil and Anmol are part of this? No. Company is independent, individual promoters are independent. That clarification has come. But we are still tracking because market is punishing that thing. So kabhi you're catching that also. But edge mein fortunately our thesis, our rationals have been turned out to be, I would say 6 on 10 we have been right side, and almost I would say 20 to 30% have made bumper return for us. For example, Quality Power we entered in 300, 400 something in April 25, and we exited at 900 levels just 2 months ago, right? So when we see there's an opportunity
and when we say there's a compelling story, we enter. And when that thesis ceases to exist, जब लग रहा है कि अभी उसमें जो कैटलिक इवेंट था जिसे हमने लिया था अब वो अब नहीं एग्जिस्ट करता है, देन वी एग्जिट, अदरवाइज वी कंटिन्यू टू होल्ड. तो वहाँ पे कोई स्टॉक लेवल पे वॉलेटिलिटी भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा वरी नहीं करती है, क्योंकि हमने एक थीसिस से लिया है, हमने एक मल्टीबैगर अप्रोच से लिया है. और जब रास्ता लंबा है तो बोलते हैं ना, कभी गड्ढे भी आएंगे, तूफान भी आएगा, बारिश भी आएगा, वो सहना पड़ेगा. सो हम इन्वेस्टर्स को भी ये बताते हैं कि हॉराइजन लंबा है तो आप एज में आइए. सो टॉकिंग अबाउट द थीसिस, अगर हम एजेस पीएमएस को देखें तो आईटी एज अ सेक्टर विच इज़ नॉट परफॉर्मिंग फॉर द लास्ट 1 ईयर, एचसीएल एक स्टॉक है आपके उसमें सेक्टर में दिख रहा है जो कि बिल्कुल फ्लैट रिटर्न दे रहा है. सो व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड हैविंग आईटी एज अ सेक्टर नाउ इन दिस ईयर ऑफ 25? So IT as a sector, if you will see, we picked up these stocks, and we picked up two. So HCL and L&T Technology we picked almost a month ago only. And जो thesis था, एक तो we were expecting sector to bottom out, क्योंकि it has not performed for many time now, काफ़ी समय हो गया है. दूसरा, US trade deal was expected to fructify. So when we entered तब था एक कि US trade deal will also help boost that. And third, आपका rupee depreciation, right? So all these things were favoring कि IT sector में have a turnaround. Now what has happened is कि result wise अगर हम देखेंगे तो HCL के results are pretty good, numbers are good, and it has also performed. L&T Technology on the contrary, numbers were good, but they mentioned they are exiting from the low margin business. L&T Technology, they are exiting from the low margin business, जिसकी वजह से उनका QOQ रेवेन्यू में थोड़ा सा ड्रॉप आया. प्लस दे गेव अ मार्जिन गाइडेंस ऑफ सिंगल डिजिट and it got punished. So somewhere we had to exit. But are we bullish on this IT sector? So we are keeping a close watch, and we feel कि देखिए, जब सेक्टर में जाते हैं तो दो तरीके होते हैं, एक होता है ट्रेंड, एक होता है रिवर्सल, दो ही चीज़ें होती हैं. सो अगर आप मान के चलेंगे आईटी और फार्मा को हम कैसा देखते हैं, वी आर लुकिंग फ्रॉम द रिवर्सल पर्सपेक्टिव. अगर आप ट्रेंडिंग सेक्टर्स में देखते हैं, यू विल फाइंड मेटल, यू विल फाइंड ऑटो, यू विल, दीज आर ट्रेंडिंग सेक्टर्स, राइट. तो जब आप फंड मैनेजमेंट में सेक्टर को एक अप्रोच देते हैं तो हम दोनों तरफ में देखते हैं कि कहीं पे रिवर्सल में, क्योंकि व्हेन द ग्रोथ विल कम इट विल बी ह्यूज, एंड ट्रेंड में कभी कभी देयर इज अ रिस्क बिकॉज इट हैज ऑलरेडी गिवन यू ह्यूज रिटर्न्स. तो कभी करेक्शन आएगा तो इट कैन बी अ लिटिल सीवियर करेक्शन ऑल्सो, बट बोथ अप्रोचेज वर्क व्हेन यू कम टू द सेक्टर आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, बिल्कुल फेयर इनफ. तो अभी थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं फ्रॉम इक्विटीज टू बुलियन ETFs, एंड यू आर one of the few fund managers who are basing on gold and silver run. And so I want to know that, I mean, 20% is your weight on bullion ETF overall. Okay, so when did you identify this, and what was your rationale on this? So post Israel, Iran thing, we realized कि somewhere things are getting little tricky. उसके बाद additional tariff got implemented, in August. वहाँ से, we became cautious that somewhere the way things are shaping up, people are trying to, look for an alternate to US currency. अगर आप देखेंगे बीच में एक बहुत सारा बज़ भी था कि क्रिप्टो और गोल्ड will be the two alternate to US dollar. And there were discussions, now oil will be bought in different currencies, and India and Russia will trade in a different currency, and Russia and China will trade in different currency, right? तो कहीं पे जो एक unsettling environment था वो create हो रहा था, and this is all a story, I would say, anywhere between July, August, September, October kind of thing, right? So that of is 25. Of 25. Okay. बट सिल्वर स्टार्टेड टू रम्प अर्लियर देन दैट. सिल्वर ने पहले से ही अपना पिकअप करना शुरू कर दिया था. सो वाइल वी वर कीपिंग अ क्लोज वॉच, क्योंकि नॉर्मली एज अ इक्विटी फंड मैनेजर अगर आप मेरे से पूछेंगे, मेरे को बुलियन पे बहुत ज़्यादा नहीं था भरोसा कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज इट्स अ मेटल, एंड बट देयर वर कंपेलिंग रीजन्स दिस टाइम, कंपेलिंग रीजन्स एंड विच वर एविडेंट एंड विजिबल ऑन ग्राउंड. ऐसा नहीं है कि क्योंकि कंट्रीज़ अगर आप देखेंगे, कंट्रीज़ तो पिछले 2 साल से होल्ड कर रही हैं गोल्ड. A lot of countries have been buying gold for last 2 years, which has kind of reduced in 25 actually, but 24-25 में बहुत gold buy किया है. But what made us interested were the compelling ground level reality कि चल रहा है.
and somewhere in September, October is when we started taking slow exposure into gold and silver. So we started with 1%, 2%, 3%, and we gradually keep on, increasing the exposure. So we feel that that was a very right move, क्योंकि अभी uncertainties और बढ़ ही रही हैं. Now we are hearing Greenland, we are hearing Venezuela, what we happened, we know. Again, lot of disturbances in Bangladesh, right? Our surrounding countries. अभी market is cheering the statement in Davos by Trump. पर आपको नहीं पता कि कल को क्या होगा क्या नहीं होगा. तो आई फील इन अनसर्टेन इन टाइम, लाइक आई सेड, कि वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ बुलियन इज कि इट इज़ प्रोटेक्टिंग योर पोर्टफोलियो. इट्स अ ऑटो हेज, राइट? फर्स्ट थिंग इज इट्स अ ऑटो हेज. तो आपने एज अ हेज लिया है कि एज अ इन्वेस्टमेंट लिया है? सो हम लोगों ने व्हेन वी टुक इन द वॉलेटाइल एनवायरनमेंट, इट इज वाज टू हेज प्रैक्टिकली, क्योंकि उस समय नहीं पता है आपको कहाँ जाएगा गोल्ड और सिल्वर, बट आपको ये पता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, एंड डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर विल हेज. सो देयर इज अ अपसाइड, बट कितना अपसाइड आएगा वो एनविसाज नहीं किया. देयर वर लॉट ऑफ, आज भी अगर आप बात करेंगे सिल्वर में, you will hear numbers like $130 of silver, right? That's a common thing, everyone will talk. Gold $6,500. So this is a normal thing that has been going on, but will it really go or not? I don't know, because सिल्वर का एक इंडस्ट्रियल यूज़ है. 60% ऑफ यूज़ इन इज़ इन इंडस्ट्री. गोल्ड इज़ ओनली 10%, बट एट दैट रेट इट्स डिफिकल्ट. या तो वो सब्सटीट्यूट होना शुरू होगा कहीं पे, राइट? या फिर उसका डिमांड कम होगा. सो समथिंग विल किक इन. सो इट कैन नॉट गो एज पर मी टू दोज लेवल्स लाइक 250 और 200 लेवल्स. हाँ, अनदर 10-15%, 30% एक्सेप्टेबल. सो बट देन वी वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट अनसर्टेनिटी है, तो इट विल एक्ट एज अ हेज. Plus, it will also give us returns. Definitely, these kind of returns we did not expect that will give. But now we are, जैसे आज भी, is it something that will reduce our exposure? It's a catch-22 situation. So you plan to be in bullion ETF for a long time? Again, long time is very subjective, क्योंकि हम बोलते हैं कि हम forecast क्या कर रहे हैं और market क्या करेगा, we don't know. But we will be there at least 10 to 12%. We will be there. अभी हम 20% हैं, and gradually we may reduce. And one more thing that we will do is कि we will be reducing our exposure of silver more and increasing gold more. So reduction in silver and increasing in gold. अभी हमारा ratio 50-50 roughly. So मेरा जो नेक्स्ट सवाल था उसका शायद आपने आंसर दे दिया है कि you see silver going up from here or not, and you see gold going up from here or not. Yes. So एक ना गोल्ड और सिल्वर का रेशो होता है, एंड हिस्टोरिकली इट इज़ वेरीड फ्रॉम 50 to 80. सो हाउ मच आउंस ऑफ सिल्वर कैन बाय 1 ounce ऑफ गोल्ड? तो अभी दैट रेशो इज़ 52. दैट मीन्स यू नीड 52 ounce ऑफ सिल्वर टू बाय 1 ounce ऑफ गोल्ड. सो समवेयर वी फील दैट सिल्वर, अगर हम गोइंग बाय द थियरी वी गो, इट हैज़ बिकम लिटिल एक्सपेंसिव. So one has to, if I have to make a portfolio, if I'm buying 10% of gold and silver, probably हम जो strategy ले रहे हैं अभी, 60% of gold and 40% of silver is what we will keep. Upside are there in both, but silver में volatility थोड़ा ज़्यादा रहेगा. बोलते हैं small cap stock की तरह silver है, और gold में volatility थोड़ा कम रहेगा. उसको मिड कैप मान लेते हैं. उसको आप मिड कैप, लार्ज कैप भी मान सकते हैं, बट हाँ. और एक चीज़ है कि गोल्ड में करेक्शन अभी शार्पली नहीं आएगा. सी, वन ऑफ द थिंग इज कि इन स्टॉक यू कैन सी इट बीइंग बूचर्ड बाय 20, 30, 40, 50%. गोल्ड में शायद नहीं आएगा वो. गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि आज अगर आप डिमांड भी देखेंगे, माइनिंग कितना होता है और डिमांड कितनी है, दैट हैज़, सप्लाई डिमांड गैप हैज़ ऑलवेज बीन देयर. सो आई फील कि वन शुड नॉट वरी टू मच अबाउट द डाउन साइड. और एक पोर्टफोलियो में 10-15% का आप एक पीस ऑफ माइंड के लिए, एंड विद द रीजनेबल ग्रोथ, यू कैन हैव दैट एलोकेशन इवन गोइंग फॉरवर्ड. So I have spoken to a lot of fund managers of PMS and AIFs, and they shy away from investing in gold and silver, ETFs also, because they say that there's no underlying story. Because equity में एक underlying story है, एक आप एक सेक्टर की टेलविंड देख रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट देख रहे हैं, आप एक कोई मोट देख रहे हैं. पर गोल्ड सिल्वर में ऐसा कुछ नहीं है, सो दे शाई अवे फ्रॉम दिस. सिर्फ स्पेकुलेशन है. सो एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से टू दी फंड मैनेजर्स, बिकॉज आपने डेयर किया है बुलियन ETF में जाने. मेरे को टाइट स्पॉट में डाल रहे हैं. सो डेफिनेटली मैं अपना पर्सपेक्टिव दूंगा, एंड आई विल नॉट गिव ज्ञान टू देम, बट हाँ, मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव दे देता हूँ कि लाइक आई सेड, सिल्वर का जो भी प्रोडक्शन होता है 60% इज़ इंडस्ट्रियल यूज़. तो वहाँ पे देयर इज़ नो डिनाइल
इट्स अ सिंपल इक्वेशन कि आपका सिल्वर कितना माइन हो रहा है, उसका प्रोसेस कितना हो रहा है और इंडस्ट्री में कितना जा रहा है. अगर हम देखते हैं एआई ग्रोथ स्टोरी है, ईवी ग्रोथ स्टोरी है, राइट. पर सिल्वर इज वो अ 60% यूज तो पहले भी था. करेक्ट. सो दैट्स व्हाट आई एम तो सेइंग. सो देयर इज अ बेस. जो आप बोल रहे हैं कि बेस नहीं है, स्पेकुलेशन है, मैं वही बता रहा हूँ. बट अब ये ग्रो कर रहा है. क्यों? ईवी का ग्रोथ अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 साल में है. एआई का ग्रोथ आपका 2-3 साल में है, राइट. सो नाउ व्हेन यू लुक एट अ मेटल that is a very good conductor of heat, electricity, has antimicrobial properties, everything. तो सिल्वर इज द ओनली मेटल दैट कम्स. तो जो यूज़ है वो पिछले 3-4 साल में काफ़ी बढ़ा भी है, राइट. दैट्स वाई आई फील कि सिल्वर तो इंडस्ट्रियल यूज़ है, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट. अब हम गोल्ड की बात करते हैं कि सर मैं आपको यहाँ जी. 1 मिनट के लिए रोकूं. आपकी बात बिल्कुल सही है कि द कंजम्पशन ऑफ और द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ सिल्वर इंक्रीज हुआ है, पर जिस प्रोपोर्शनेट से सिल्वर का प्राइस बढ़ा है वो डिसप्रोपोर्शनेट है. करेक्ट. Right? Now, ये disproportionate is because of the geopolitical uncertainties that everyone is facing is there. But ये बहुत हद तक एक speculation भी है. Right? So, क्या ये सही होगा कहना कि अगर ये speculation है तो यहाँ से sharp correction आ सकता है? सो नरेन, लाइक आई सेड कि देर आर डिफरेंट थियरीज कि स्पेकुलेशन अगर है तो हम बात करते हैं. इफ़ यू गो बैक यू नो मे बी हम 6 महीने पहले चले जाते हैं तो सिल्वर का प्राइस तो बहुत टाइम से सेम था. तो मैं आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूँ कि तब क्यों नहीं बढ़ रहा था, राइट. यू डिड नॉट सी एनी ग्रोथ इन सिल्वर. सो द क्वेश्चन शुड हैव कम कि यार अगर मेरा डिमांड है और सिल्वर का प्रोडक्शन है, सप्लाई का यू नो देयर इज अ शॉर्टेज एंड डिमांड व्हेन सिल्वर प्राइस इज नॉट गोइंग अप. Why is it not going up? So So, that was the demand has, the consumption has no correlation with the price increase. नहीं, मे बी इट वॉज नॉट रियलाइज. सी क्या होता है कभी कभी यू नो सर्टेन थिंग इज सिटिंग देयर एंड पीपल आर मोर टूवर्ड्स दी स्टॉक मार्केट. वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड यू नो इट्स सिटिंग इन अ डॉर्मेंट फेज. सडनली समथिंग किक इन एंड ऑल रैशनल्स यू नो दे किक इन कि हाँ ये था और अभी तक नहीं किया, एंड इट वॉज अंडर प्राइज. सो एम आई इन सिंक कि नहीं, ये जो प्राइस है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशन, इट इज़ फ्यूल्ड बाय स्पेकुलेशन. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इट इज़ दिस exorbitant jump is fueled by speculation, but there was also an underlying reason for it कि एक टाइम था जब उसको ग्रो करना चाहिए था, नहीं किया, एंड मे बी इट इज कॉम्पनसेटिंग फॉर दैट डिमांड. एंड ऑल्सो सेकेंड थिंग इज गोल्ड एंड सिल्वर का पैरिटी रहता है. तो गोल्ड वॉज बीइंग होल्डेड बाय कंट्रीज. जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड जो है कंट्रीज हैव बीन होल्डिंग. इफ यू लुक एट द डेटा, यूएस, रशिया, चाइना, दे आर ऑल होल्डिंग गोल्ड फॉर नो रीजन एंड लास्ट. सो it gives you sense कि somewhere people are looking gold as a alternate, you know. So gold is something which is not related to any country default. It's a central. कल को अगर यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं करते हैं देन अक्रॉस द ग्लोब आपके पास क्या वो मीडियम है जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं जो फिएट करेंसी नहीं है? इट्स ओनली गोल्ड. So it has been fueled by the speculation of uncertainty. I agree with you. But then why it is gold? Because people have seen gold as that asset class. राइट. सो गोल्ड में स्पेकुलेशन डेफिनेटली है क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज तो गोल्ड का है नहीं, 10% है, कोई बहुत ज़्यादा है नहीं. तो गोल्ड इज़ मोर प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स अ सेंट्रलाइज करेंसी. अगर कुछ फिजल आउट होता है तो गोल्ड का आई वुड से इट्स मोर ऑफ अ स्पेकुलेशन. एंड रिवर्स इज गोल्ड सिल्वर रेशियो कि अगर गोल्ड बढ़ रहा है, हमने इन दोनों मेटल्स को साथ में टैग किया हिस्टोरिकली, तो ऐसा नहीं कि गोल्ड चलता रहेगा और सिल्वर नहीं चलेगा. तो समवेयर सिल्वर हैज टू कैच अप हिस्टोरिकली. So I would say both are correlated, gold and silver, to each other, and ratios play a critical role कि it can be anywhere between 50 to 80. तो बट डर लगता है जब इतना आ गया है तो और कितना जाएगा. एंड दैट्स व्हाई आई सेड गोइंग फॉरवर्ड, आई मीन लाइक ना कि आज अगर आप देखेंगे ETFs में, आई एम नॉट श्योर यू सॉ द मार्केट और नॉट, बट टुडे ETFs ओपन एट 15, 16, 17% डाउन, जबकि ओरिजिनल गोल्ड एंड सिल्वर इन फिजिकल दे आर डाउन बाय 1 to 2%. ETFs have corrected by 7-8% today. So it's not that easy to manage them. There is a challenge, but I believe in the long run, uncertainty will keep this fire going up for some more time. And जिस geopolitical environment में हम जा रहे हैं, जहाँ पे wars are gonna be common, countries will be fighting for territory, there will be fights for mineral, right? Resources के लिए fight होगा. तो आई बिलीव कि वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट विच कैन होल्ड दैट थिंग फॉर ट्रांजेक्शन्स प्रोबेबली विल बी गोल्ड. सो आई फील कि गोल्ड में विदाउट द बेसिस, द ओनली बेसिस इज दैट अ ऑल्टरनेट थिंग कम्स इन, क्योंकि कंजम्पशंस एंड एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल. बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी ऑटोमेटिकली डिमांड ज्वेलरीज वगैरह में माई सेंसेस कम हो जाएगी. बट दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अ नॉन फिएट करेंसी, आई थिंक दैट कम्स विद गोल्ड. So that means gold is poised to grow, and you don't see a sharper correction coming in gold. But yes, silver, there can be
there can be a case of having a sharper correction, or maybe it still goes up. So yeah, I mean, it will still go up. The journey will be very volatile. So I be can prepared for that, volatile journey. तो अभी वॉलेटिलिटी से स्टेबिलिटी पे आते हैं और बात करते हैं आपके म्यूचुअल फंड पीएमएस की. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. Right. ओके. और जहाँ पे पीएमएस इन्वेस्टर आपको फंड्स देता है और आप आगे उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं. नाउ हाउ डज दिस होल थिंग वर्क? बिकॉज जब मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे टैक्सेशन नहीं पड़ता है, और जब मैं उसको रिडीम करता हूँ मुझे तब एक बार टैक्सेशन देना पड़ता है, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना पड़ता है. और पीएमएस में तो फॉर एवरी चर्न आई विल बी पेइंग टैक्सेशन. सो हाउ डज दिस होल आइडिया अबाउट हैविंग अ म्यूचुअल फंड पीएमएस वर्क्स फॉर द इन्वेस्टर? आई एम ग्लैड नरेन कि आपने क्वेश्चन पूछा, एंड आई थिंक आपके माध्यम से मैं शायद एक दर्शकों तक पहुंच पाऊंगा. जी. तो सबसे पहले हम मानते हैं कि म्यूचुअल फंड पीएमएस क्या है, और बोनांजा ने जब इसको लाया मार्केट में दिसंबर 2020 में, क्यों लाया? देखिए, अगर हमने देखा है बहुत सारी कैंपेन हुई है, म्यूचुअल फंड सही है, राइट, वी ऑल नो, एंड इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर द बिगनर्स. बट आम तौर में अगर आप निवेशक की मानसिकता समझेंगे तो वो इन्वेस्ट करते हैं और छोड़ देते हैं, राइट. आपने एक फंड सोचा, और जो भी आप फंड्स उस समय सेलेक्ट कर रहे हैं वो उस समय के टॉप परफॉर्मिंग या अच्छे ही फंड होंगे. यू कैन नॉट गो रॉन्ग. और उस पर एक सिप लगा दिया, एक सिप लगा दिया, आपने लमसम डाल दिया, राइट. तो आपने मनी कंट्रोल देखा, वैल्यू रिसर्च देखा, खुद का रिसर्च किया, एंड मोर और लेस सब बताएंगे ये फंड अच्छे हैं. आपने स्मॉल कैप लार्ज कैप में जो डाला अच्छे हैं. नाउ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, इसकी जो अच्छा था फंड, धीरे धीरे 1 साल 2 साल के बाद आप देखोगे कि वो अंडर परफॉर्म कर रहा है. बट आपका SIP उसमें चल रहा है, आपका लमसम उसमें चल रहा है. बट अगर अब आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट 2 साल के बाद करना है तो आप उस फंड में नहीं करोगे. यू विल फाइंड द गुड परफॉर्मिंग फंड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. यू विल नॉट रिमूव दिस फंड. आप नया SIP नए फंड में तो कर दोगे, बट पुराने फंड वो एज इट इज चलते रहेंगे, वो SIP चलता वो चलता रहेगा, इवन इफ इट इज अंडर परफॉर्मिंग. सो वी रियलाइज कि दिस थॉट प्रोसेस इज कॉस्टिंग इन्वेस्टर्स 4 to 5% एवरी ईयर. दैट्स अ ह्यूज अमाउंट. एंड ये जो डिफरेंस है 4 to 5% का, ये स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा था, मिड कैप में कम था, लार्ज कैप में और कम था, क्योंकि वहाँ पे फंड मैनेजर्स के बाद टू प्ले अराउंड विद द स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नहीं रहता है लार्ज कैप में, राइट. मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा रहता है, स्मॉल कैप में और रहता है. एंड दिस इज़ अ थॉट प्रोसेस वी रियलाइज. अच्छा, इन्वेस्टर्स क्यों नहीं चेंज करता है? तो इसका सवाल आपने भी पूछा कि टैक्स लगता है, तो मैं टैक्स नहीं लगे इसके लिए मैं अंडर परफॉर्मिंग फंड में चलता रहता हूँ, मेरे को एग्जिट लोड नहीं लगे मैं चलता रहता हूँ. बट द कॉस्ट इज़ ह्यूज. अब मैं आपको एक सिंपल सा मैथ्स बताता हूँ. आज आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, राइट. आपने बोला मैं उसको साल के बाद ही निकालूंगा तो मेरे को लॉन्ग टर्म, आप कभी तो निकालोगे उसको. नाउ द क्वेश्चन इज 12.5 वर्सेस 20%, उतना ही फ़र्क है. अब मान के चलिए कि आपने अपने आप रिटर्न निकाला 20% का, विच इज़ वेरी गुड. आप, या मैं 10 रुपीज़ लेता हूँ, आपने 100 लिया, 110 पे आपने उसको एग्जिट किया, आपको टैक्स लगा 12.5%, राइट. तो आपका नेट ऑफ टैक्स रिटर्न आ गया, कितना आ गया आपका, 87.5 आपका. तो 8.75 आपका नेट ऑफ टैक्स रिटर्न आ गया. मैंने आपको 5% ज़्यादा रिटर्न दिया. मैंने मतलब इन द सेंस कि म्यूचुअल फंड पीएम से जो भी कर रहे हैं उसने आपको 5% ज़्यादा अल्फा दिया. उसने आपको दिया 15% का. अब 15% पे आपने 12.5% का आपने टैक्स पे किया, आपने गेंस, आपने 20% टैक्स पे किया, क्योंकि वहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म आया, शॉर्ट टर्म आया. तो मेरे को टैक्स इतना लगा 3 रुपीज़ का. 3 रुपीज़. मैं कितने पे, 112 पे. आप कितने पे, 108 पॉइंट इस पे 75 पे. तो इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर जनरेटिंग 4 to 5% पोस्ट टैक्स. तो मैं 20% टैक्स देखूं या मैं देखूं 5% अल्फा कैसे क्रिएट कर सकता हूं? सो आपके जो पीएमएस, जो म्यूचुअल फंड पीएमएस है, उसमें आप क्या अल्फा, बिकॉज म्यूचुअल फंड को अगर हम ब्रॉडली देखें जी. तो ये 15-16% का एक प्रोडक्ट है. जी. ओके. सो आप क्या रेकमेंड करते हैं कि म्यूचुअल फंड, बोनांजा म्यूचुअल फंड पीएमएस का क्या अल्फा आएगा, या क्या रिटर्न्स, या क्या प्रेडिक्टेड रिटर्न्स आएगा? जैसे मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ. म्यूचुअल फंड पीएमएस में भी हमने 2 से 3 वैरायटी निकाली हैं, स्ट्रैटेजीज टू अपील टू डिफरेंट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स. एक इन्वेस्टर्स है, बोलते हैं मैं स्टॉक मैनेज कर रहा हूँ, मुझे खाली म्यूचुअल फंड मैनेज करना है, तो वी हैव अ ऑप्टिमा जिसमें 100% म्यूचुअल फंड्स में ही डालते हैं हम. एक है जहाँ पे बोलते हैं कि मैं नया इन्वेस्टर हूँ, आई एम अ न्यू इन्वेस्टर, मेरे को म्यूचुअल फंड से कंफर्ट आता है, मेरे को स्टॉक से थोड़ा डर लगता है, बट आई एम विलिंग टू टेक एक्सपोजर. तो फॉर देम वी हैव क्रिएटेड अ ब्लेंडेड म्यूचुअल फंड पीएमएस, जहाँ पे आप 80-70%
म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे, 20-30% हम स्टॉक्स में डालेंगे, क्योंकि स्टॉक तो हमारा फोटे है, हम कर रहे हैं उसको 21 साल से, राइट। तो वहाँ पे उनको पीस ऑफ कंफर्ट, पीस ऑफ माइंड देने की कोशिश करते हैं कि आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो रहा है और आपको एक स्टॉक का भी थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा। तो ये 2 स्ट्रैटेजीज हम लोग करते हैं, 100% म्यूचुअल फंड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक। अगर आप रिटर्न देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्ट्रैटेजी का बताता हूँ, प्लैटिनम अल्फा, इट वाज लॉन्च इन मार्च ओनली। मार्च से अभी तक आप बोलेंगे मार्केट भी अच्छा है, सब अच्छा है, बट उसमें वी हैव डिलीवर्ड रिटर्न्स क्लोज टू 18% सो फार, मच बेटर देन द मार्केट, राइट। जिसमें हमने ग्लोबल फंड्स में भी डाला है, उसमें वी हैड अ गुड एक्सपोजर इन चाइना फंड, वी हैड अ गुड एक्सपोजर इन गोल्ड सिंस वेरी अर्ली टाइम्स, राइट। सो वी वर डूइंग दैट। इसी तरह हमारा एक ऑप्टिमा फंड है विच इज़ 100% म्यूचुअल फंड, उसका अगर हम 1 ईयर का रिटर्न देंगे इट्स क्लोज टू 12%। सो अब अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे और म्यूचुअल फंड पीएमएस में कंपेयर करेंगे, तो मैं आपको जैसे कुछ एनेक्डोट देता हूँ इन रियल ट्रांजैक्शंस में। जी। हम लोगों ने 2024 में क्वांट म्यूचुअल फंड लिया था स्मॉल कैप। सो हमारा एलोकेशन है कि वी टेक 10% एक्सपोजर इनटू स्मॉल कैप, मतलब 30% स्मॉल कैप, 40% लार्ज एंड, इस तरह का एलोकेशन है। सो अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड आज होल्ड करते हैं स्मॉल कैप फंड को, तो यू वुड हैव मेड अ लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 5 to 6%, राइट। हम लोगों ने 24 में लिया क्वांट को स्मॉल कैप, वी स्टार्टेड, बट बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल फंड पीएमएस वी सोल्ड इट ऑफ इन जनवरी 2025, क्योंकि हमारे कुछ प्रोप्राइटरी पैरामीटर्स हैं जिनको हम ट्रैक करते हैं। वी गिव लॉट ऑफ वेटेज टू दी होल्डिंग्स, द रिस्क दैट द म्यूचुअल फंड गोज, एंड हमारा एक इंटरनल रेटिंग होता है, तो वहाँ पे जब वो रेटिंग नीचे आ जाता है वी एग्जिट, एंड देन वी एंटर्ड इनटू अ डिफरेंट स्मॉल कैप फंड विच वाज इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड. Now you won't believe, in a span of 2 years now, I'm saying January, so 24 to अभी इसकी बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप टू स्मॉल कैप, इफ आई वुड हैव, एंड यू नो इन 2024 क्वांट वाज अ वेरी गुड फंड. अब अगर किसी ने क्वांट नहीं निकाला है, देयर एक्सपीरियंस वुड बी बैड इन 2 years क्वांट स्मॉल कैप फंड. आज अगर हम देखेंगे द अल्फा विद इन स्मॉल कैप फंड इन दिस 2 years विद इन क्वांट इज क्लोज टू 13 to 14%. वहाँ पे उसने लॉस किया और यहाँ पे हमने प्रॉफिट किया है, स्मॉल कैप फंड टू स्मॉल कैप फंड. नाउ माई क्वेश्चन टू व्यूअर्स इन्वेस्टर इज कि एंड ऑफ द डे में बाय स्विचिंग फ्रॉम वन म्यूचुअल फंड टू अनदर म्यूचुअल फंड, बाय टेकिंग केयर ऑफ द टैक्स एंड एवरीथिंग, अगर आप 2 या 3% का भी अल्फा दे रहे हो, देन व्हाई नॉट, इवेंचुअली इट्स मनी. भाई मैंने कोई क्वांट म्यूचुअल फंड से तो शादी नहीं की है, आई हैव नॉट मैरिड क्वांट म्यूचुअल फंड. आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन टू द म्यूचुअल फंड विच कैन गिव मी गुड रिटर्न्स. और अगर मुझे लग रहा है कोई म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं कर रहा है, देन आई शुड एग्जिट फ्रॉम इट. स्टॉक में हम क्या करते हैं, पर हम वो म्यूचुअल फंड में नहीं करते हैं. म्यूचुअल फंड में नहीं करते हैं. क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक कंफर्ट आ जाता है कि ठीक है Exactly. लॉन्ग टर्म में देखेंगे. लॉन्ग टर्म में देखेंगे. और जब हम म्यूचुअल फंड में सिप करते हैं जी, तो द इन्वेस्टर माइंडसेट इज कि डोंट लुक एट इट फॉर नेक्स्ट 10 years. सो आई थिंक यू आर राइट कि इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्विच द म्यूचुअल फंड्स, व्हाई नॉट. एंड नरेंद्र जी ट्रस्ट मी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इट्स अ रियल रिकॉर्डेड डेटा 2 साल का. एंड कोई भी अगर आते हैं, आई कैन शो दैट दिस प्रोसेस हैज़ हेल्प्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट अल्फा. एक म्यूचुअल फंड में अगर हम देखेंगे जो मैं शिफ्ट किया है, इट्स क्लोज टू 8 to 10% इन अ सिंगल म्यूचुअल फंड इन अ ईयर जस्ट बाय स्विचिंग. एंड एक एग्जाम्पल नहीं है, काफ़ी एग्जाम्पल हैं. This is wonderful, I think, and it's a unique idea, and we wish you all the best for this mutual fund, and I hope that you generate a lot of alpha for the investors. That is what our endeavor is. And but yes, म्यूचुअल फंड इज समथिंग, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, सब लोग करते हैं. जी. एंड आई ऑलवेज से इफ़ योर पोर्टफोलियो इज़ बिग, यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ थॉट कि हमारा रखे पैसा जो है, शायद वो 5% ज़्यादा दे सकता था जो नहीं दे पा रहा है, बिकॉज ऑफ अवर थॉट प्रोसेस और अवर रेजिस्टेंस टू चेंज, कि यार टैक्स लग जाएगा, एग्जिट लोड लगेगा ही लगेगा, वो सब 1-2% अल्फा में कवर हो जाता है. Not So, more. as an investor, because I have been an investor and I keep doing it, so I have a question for you from the fund manager's perspective. Okay, if I have a certain amount of money with me, and मेरे पास कई सारे asset classes हैं, from real estate to having direct equities, okay, to mutual funds, to PMS, to AIF. Okay, मुझे किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहिए, या क्या एसेट क्लास मुझे बिल्कुल अवॉइड कर देने चाहिए, और किन एसेट क्लास में मुझे फोकस करना चाहिए या कुछ सेक्टोरल वेट देना चाहिए. हाउ शुड आई गो अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग माई वेल्थ इनटू दीज सो दैट दे आर कंपाउंडिंग. आपने नरेंद्र जो क्वेश्चन पूछा है, दैट इज़ द क्रक्स, बोलते हैं ना, पूरे इन्वेस्टमेंट का सार है.
हम लोग क्या करते हैं इस इंडस्ट्री में, हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। अच्छा आपके पास पैसा है, मैं आपको पीएमएस दे देता हूँ, मैं आपको एआईएफ दे देता हूँ, हमारा ये रिटर्न अच्छा है, रिटर्न अच्छा है। बट हम शायद ये भूल जाते हैं कि निवेशक से उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? उनका करंट कहाँ पे एलोकेशन है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इन्वेस्टर। तो जब आपने पूछा तो मेरा तो पहला सवाल रहेगा कि अभी आपका क्या एलोकेशन है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका जोखिम उठाने की क्षमता क्या है, रिस्क एपिटाइट क्या है। कि कल को ऐसा तो नहीं है मैं तो पीएमएस दे दूं क्योंकि वेल्दी है, बट प्रैक्टिकली यू आर अ पर्सन हु गेट्स वरीड और ट्रबल्ड अगर मार्केट नीचे जाता है, देन डायरेक्ट इक्विटी इज अ नॉट राइट अ प्रोडक्ट, राइट? देन आई वुड सजेस्ट यू मोर डाइवर्सिफाइड, देन लाइक म्यूचुअल फंड पीएमएस माइट बी मच बेटर, क्योंकि इसमें वॉलिटिलिटी कम होगी अगर मेरे को इक्विटी ही देना है तो। बट इफ़ वी आर गिविंग फ्रॉम द लेमैन पर्सपेक्टिव, क्योंकि लाइक ए सेट कि आज एडवाइस देना कि क्या एसेट एलोकेशन है, बट अगर मैं मान के चलता हूँ एक हाइपोथेटिकल केस है, और let's say a person in 40 wants to do a asset allocation today and he's a HNI, तो रियल एस्टेट जब हम बात करते हैं, आई वुड से रीट इज़ अ गुड ऑप्शन, कि आपको फिजिकल की जगह आप डिजिटल में रीट्स आ सकते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट टर्म्स, दैट्स अ गुड ऑप्शन, एंड इट्स अ स्टेबल, नॉट वेरी वॉलेटाइल, गिव्स यू डिविडेंड, राइट? तो आपका अराउंड 10 to 15% कैन बी दैट, एंड अगेन दिस इज समथिंग आई वुड प्रोबली गिव इट टू समवन इन 40s, राइट? एंड गुड पोर्शन टू इन्वेस्ट. I would suggest that equities as a portfolio. Now PMS, AIF are all part of equities. आप डायरेक्ट खुद मैनेज करें, कोई और आपके लिए मैनेज करे, बट आपका एक्सपोजर डायरेक्ट स्टॉक्स में है, राइट? इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स, वो स्मॉल कैप में हो, लार्ज कैप. सो एक्विटीज एज एसेट क्लास, चाहे वो किसी भी तरह से हो, आई बिलीव अराउंड 60-65 कैन बी द एलोकेशन, क्योंकि यू स्टिल हैव टाइम एंड यू कैन टेक रिस्क. एंड अगेन गोइंग बैक द नोशन कि आप एक HNI हैं, वेल्दी और पैसा आ रहा है. Given the uncertainty, like I said earlier, around 15 to 20%, I will still keep in bullion, right? So that will be my, so 60 to 65 will be equities, 10 to 15 will be into bullion, roughly on the 15% side, and 15 odd percent would be REIT. So this brings to around 90-95%, and then 5% आजकल unlisted का बहुत चार्म है to invest into some unlisted companies or cat one. So because you have time and a lot of good ecosystem, startup ecosystem is there, I would like to put 5% of that portfolio into companies जो मेरे को समझती हैं in those businesses, and I would definitely recommend one to take that exposure risk. चाहे आप 4% 5% लीजिए, बट आप ट्राई करिए, आप सीखेंगे इंडस्ट्री के बारे में, एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पहली बार में जैकपॉट लगेगा, बट यू कैन डाइवर्सिफाई दैट कैपिटल, सो कीप 5% फॉर दैट. सो 65% जो आपने इक्विटी में डाला, वो आपने डायरेक्ट इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, PMS, AIF में सब में डाला. Correct. तो अब इस 65 को एक बार एलोकेट करते हैं. इस 65 को अगर एलोकेट करना है, एंड नरेंद्र जी, अगर मेरे को लगता है कि इन्वेस्टर इज एग्रेसिव एंड ही अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ द मार्केट, देन ऑफ दैट 65 आई वुड से माई नियरली 60 to 70 विल बी इनटू स्मॉल टू मिड कैप. सो मैं मान के चलूँगा अराउंड 35 to 40 विल बी इनटू स्मॉल एंड मिड. लार्ज कैप में मैं कम रखूँगा, क्योंकि रीट्स एंड बुलियन हैज़ काइंड ऑफ टेकन केयर ऑफ दैट पार्ट. सो आई वुड से आउट ऑफ दैट 65 अराउंड 10 odd percent will be into large cap, and the remaining will be into the mid cap. So it will be primarily small cap, mid cap oriented, and out of 65 maybe 10% would be large. So 55 will be into small and mid. सो उसमें म्यूचुअल फंड में जाएं कि PMS में जाएं? So अगर आपको एक्सपीरियंस है, राइट, एंड यू नो दोज प्रोडक्ट्स, यू आर यू आर हैप्पी टू टेक रिस्क, तो मैं आपको PMS या AIF रिकमेंड करूँगा. बट अगर आप इन्वेस्टर हैं कि नहीं मेरे को, मैं देखिए क्या होता है कि एबिलिटी, एक होता है विलिंगनेस. इस केस में आपके पास एबिलिटी, आप HNI हैं, पैसा है आपके पास, विलिंगनेस, राइट, वो विलिंगनेस है या नहीं है वो नहीं पता मुझे, क्योंकि पैसा होना और जोखिम उठाने की क्षमता दोनों अलग चीज़ें हैं. तो अगर मुझे आपसे बात करके या समझ में आता है रिस्क क्वेश्चनियर में कि नहीं यू कैन टेक रिस्क, देन आई विल सजेस्ट यू टेक अ डायरेक्ट एक्सपोजर इनटू इक्विटी. तो जहाँ पे PMS और AIF आर द राइट प्रोडक्ट्स. बट मुझे लगता है कि नहीं, कहीं पे वॉलेटिलिटी कैन इम्पैक्ट यू साइकोलॉजिकली, तो वहाँ पे आई विल सजेस्ट यू गो थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट. क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आप 10 म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो रहा है 300-400 स्टॉक्स में, राइट. उतना ही पैसा अगर आप 1-2 PMS में डालते हैं तो वो 40-50 स्टॉक्स में होता है. सो इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स वर्सेज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड. देन आई विल प्रोबब्ली सजेस्ट यू म्यूचुअल फंड्स. Fair enough. So abhi tak, Achin, we have spoken about a lot of time references have come about the geopolitical turmoil. Okay, how is this geopolitical turmoil going to play for India in this whole year? Because we are seeing at one extreme end Mr. Trump threatening on the tariffs. Okay,
and delaying the India-US trade deal for a very long time now. At the other end of the table, we see that the India-EU trade deal is just around the corner. Okay, and we've got a very good feedback from Ursula yesterday about something big is going to happen. So, how do you see this geopolitical turmoil going to affect Indian markets in this year? सो नरेन, जो जियो पोलिटिकल इशूज़ हैं वो कैसे शेप करेंगे इंडियन मार्केट को, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक कि उनका इम्पैक्ट जो है अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है. जब कोई इवेंट पहली बार होता है उसका इम्पैक्ट डीप होता है थोड़ा सा. जब सेकेंड टाइम में टैरिफ आए तो उसका कम हुआ इम्पैक्ट, क्योंकि पीपल आर नाउ यूज टू इट. जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्लासिक एग्जाम्पल इज कोविड. इट वॉज ऑन द नेगेटिव कोनोटेशन बिकॉज यू नो लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेज. बट जब कोविड का फर्स्ट वेव आया तो इम्पैक्ट वॉज ह्यूज, राइट? वी सॉ व्हाट हैपेंड एंड एवरीथिंग हैपेंड. जब वेव 2 आया, people were prepared. In fact, the maximum casualty happened in wave 2, right? But it did not impact economy that much जो पहले वे में आया था, क्योंकि it was sudden, it was unexpected. Similarly, अब अगर आप मानसिकता देखेंगे, टैरिफ से लोग यूज हो चुके हैं. दे फाउंड ऑल्टरनेट, क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट? तो मेरे को तो अपनी दुकान चलानी है. अब कल को यूरोप टैरिफ डालेगा, यूएस टैरिफ डालेगा, पीपल हैव फाउंड ऑल्टरनेट. मे बी दे हैव इंक्रीज द डोमेस्टिक, मे बी दे हैव चेंज प्रोडक्ट लाइन. So will it impact? Yes. Will the impact be severe? No. अब ट्रेड डील की बात करते हैं. Now anything positive will only make our markets better. अभी 27 जनवरी को एक्सपेक्टेड है कि EU इंडिया ट्रेड डील होगा. अभी वहाँ पे जो सेक्टर्स हैं कौन से इम्पैक्ट हो सकते हैं? आपके टेक्सटाइल सेक्टर है, क्योंकि बहुत सीवियरली इम्पैक्ट हुआ है. टेक्सटाइल है, फार्मा है, राइट? जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं. दीज आर द 3-4 सेक्टर्स जो मेजरली इम्पैक्ट हुए हैं. तो EU ट्रेड डील होता है, डेफिनेटली विल बी बेटर फॉर देम. नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं आता है, इट्स नॉट गोना बी बैड, राइट? सिमिलरली यूएस ट्रेड डील अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्च में होगा. अब वो होगा तो वो इन सेक्टर्स के लिए बेटर होगा. बट यहाँ से क्या अब कल को हमारे को कोई आती है, कोई भी इकोनॉमी आती है, बोलती नहीं मैं आपको एक्स टैरिफ डाल दूंगा, वाई टैरिफ डाल दूंगा, विल इट सीवियरली इम्पैक्ट? प्रोबेबली नो. माई सेंसेस की जो नेगेटिव पार्ट था ना, वी कैन अगेन गो इनटू कंसोलिडेशन. क्या सीवियर करेक्शन आएगा? वहाँ पे मेरा सेंस है कि अभी बहुत सीवियर करेक्शन नहीं आएगा. So मार्केट फैक्टर इन कर चुका है अभी ये वाले हाँ, एस्पेक्ट्स, मतलब क्योंकि ये बहुत लंबा correct, खिंच गया. लंबा भी खींच गया. एंड यू नो वो एक ही चीज़ जब बार बार होती है ना, तो पीपल आर नाउ अकस्टम टू इट कि ये चलता रहेगा. एंड अगेन वन ऑफ द थिंग इज रशिया यूक्रेन वॉर, राइट? इट्स स्ट्रेचिंग फॉर सो लॉन्ग. नाउ पहले रोज न्यूज़पेपर में आता था, उसके बाद कम आता है. अब वंस इन अ वाइल यू सी कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, इम्पैक्ट भी उतना ही कम हो गया है. तो क्योंकि ट्रेड डील इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, तो येस थोड़ा बहुत आएगा इम्पैक्ट. बट विल इट लिंगर ऑन, विल इट रियली डिस्टेबलाइज? ऐसा नहीं होगा. बट एनीथिंग पॉजिटिव विल सेंड अ पॉजिटिव ट्रिगर्स. सो आई बिलीव नेगेटिव हमारे पास खोने के लिए नहीं है, हमारे पास पाने के लिए ही ज़्यादा है. एंड येस, ट्रेड डील्स आर राउंड द कॉर्नर. होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग यू ट्रेड विल यू नो फ्रक्टिफाई, और अनाउंसमेंट भी आया है. एंड यू नो इन मार्च होपफुली इवन इंडिया यूएस ट्रेड डील विल यू नो कल्मिनेट. डिफर भी होगा. I think it's fine. So if you ask me, it's not a very major event for the market per se to me. Absolutely. So this has been a great conversation, Achin, and we wish you all the best for Bonanza, and we wish you all the best for investors. And we hope that you make a lot of alpha for them through all your efforts and all your experience. Just before we wind up this wonderful podcast, we would love to take you to a rapid fire section, okay, where we will randomly ask some questions, and we want you to randomly answer them in one word or one sentence, so that we capture your mind, you know. So, Sure. I will try my best, Naren. okay, so can we start now? Yeah, please. Okay, so between the small, mid, and large caps, which one is your preferred? Mid. Which sector 2026 is going to rule? Defense. Which stock is going to be a multi-bagger in 26? I wish I knew for certain. Now that is a tricky bet. But I feel, I mean, you know, here I just would like to, rather than naming a sector, I would suggest PSU Bank, and small PSU Bank is what I'll keep my radar on. Radar on. Yeah. Okay, and in that small PSU banks,
Any stock that you would like to pinpoint for our investors? Maybe JNK, Bank of Maharashtra, right? So something of these sort is what I like to Is keep my. going to be the multi-bagger. Uh, yes. So I'm looking multi-bagger from the perspective of a good risk-reward ratio as well. So because I said the markets are volatile, I know it's going more than a sentence, but I'm giving a clarification because volatility is gonna be something that one should keep in mind. Brilliant. Okay, so India-US trade deal in which month? March 2026? 26. So 26 is going to be having a lot of fireworks. Yes. Okay, and Trump in Greenland. No, I don't think that will happen. My sense is that will be part of you. Yeah. All right, and the one last rapid fire alpha for the PMS ages and edge in 26. So we are expecting, if market benchmark is Nifty 500 or BSE 500, our target would be close to 10% over and above that. Excellent. So we wish you all the best, Achin, and I believe that it was a wonderful experience sharing, and that is what Returns and Beyond is all about. So thank you, viewers, for watching this this episode of Returns and Beyond. Our endeavor is to get the best of the experiences, and that is the fund managers of PMSs and AIFs to your doorstep, so that you gain from their experience and go into that journey of wealth creation and compounding. Thank you so much for watching, and we will be back soon. So, we've had a wonderful podcast, but would like to say that a small disclaimer that all the things that we have said is for educational purposes, and the viewers, the investors, are requested and instructed to please take your own decisions while you're investing.